So here we go with another discussion on the dihedral group. And one more group we are going to talk about today, that is a group of quaternion. So in the last lecture, we have discussed about the group D4, and we found this was constructed with the help of observing symmetry in a square. Fine. So as far as the group of dihedral group concerned, we have talked about D1, D2, D3, and D4. So these groups are generated by observing symmetries, and those symmetries are nothing but the symmetries obtained by rotation or flipping. Fine. So two kind of symmetry we have observed, and based on that we found that D1, D2, D3, and D4 are the group that can be constructed. Okay. So the question is that can we talk about in general Dn? Okay. So what we have seen that when we talked about D3, then we took an equilateral triangle, the triangle with the equal sides, and when we talked about D4, we took a square. Fine. So there were four sides, there were three sides, and they were discussed separately, and they were arises with the help of an isosceles triangle and what is called a rectangle. Fine. So when Dn, that is n, is greater than or equals to 3, we term Dn is to be dihedral group. All right. So now we talk about in general what is Dn and what are the things we can formulate for Dn, or we can observe something from these four groups, D1, D2, D3, and D4, and then how we can summarize the kind of elements Dn should have. Okay. So up to now it is all right, I guess. So let us move further. By observing what we have discussed in the dihedral group, we can summarize them as follows. So a regular polygon, you know what is a regular polygon? Anyone? Yes sir, जिसके सारे side equal होते हैं और सारे angle. Yes, that's good. Very good. So you can note down 1 point for this. Okay, so we have if we have a regular polygon that is having n sides and then they have two n different symmetries. And this we have seen in particular example in case of D3 and D4. So D3 arises with the help of was constructed with the help of an equilateral triangle, and we have seen these angles were equal. All right. So each angle were 60 degree. And then here in this case, each was 90 degree. 90 degree. And of course, all sides were equal. So they are trigon, and they are fourgon. And in general, we term n-gon. Okay. So they called n-gon kind of thing. But thing is that we say regular polygon with n sides. So we have observed in D3 or D4, whatever group we have taken in dihedral group so far. So there were three symmetries as a rotation and three symmetries as reflection. So rotation 3 and flipping 3. And here in this case also for rotation and for reflection or flipping. Fine. So we have seen that in any group Dn, we have a total number of elements 2n as far as we have verified from D1 to D4. All right. And in these 2n, we have n reflection, n rotation, and n flipping. Fine. They are exactly in half in numbers. So here.
Okay, let us see. But they are depending on now what is because this is always even, so we can make half of them. Okay, so let us see some more thing here. For n greater than or equals to 3, associated rotation reflection make up the trihedral group Dn. Fine. So in this case we have taken the example D3 and D4. If n is on, how if n is odd? Fine. So here we can take this example D3. If n is odd, then each axis of symmetry connects midpoint of one side to the opposite vertex. So are you getting this one? So n was odd. So this is a regular polygon, or that is a trigon. So this is A, B, C. This is an equilateral triangle. So this point is making it clear that the symmetries something is strange. Okay, so the symmetry n is odd. So here n is odd, and then symmetry. It is talking about the symmetry. It is saying that the reflection symmetry will come from when we join the vertex and the midpoint of the opposite side. Fine. So we have observed that these were the symmetry in equilateral triangle. So यहाँ पे कितनी symmetries थी? 3 symmetries थी, ठीक है ना? Flipping के flipping, 3 flipping were there. Okay, and then if you talk about this n is even, ठीक है ना? So then n by 2 axis of symmetry connecting the midpoints of opposite sides. So n is even, तो हम n is even की केस में हम क्या बात कर सकते हैं? स्क्वायर ले सकते हैं, और ये स्क्वायर की केस में कह रहे हैं कि जो सिमेट्रीज कहाँ से मिलेंगी? एक तो सिमेट्री ये मिलेगी, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना? ये दोनों सिमेट्री अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड, एंड n by 2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कनेक्टिंग द अपोजिट वर्टिसेस, और ये हो जाएंगे डायगोनल. फाइन. तो दे आर द एक्सेप्ट रोटेशंस, दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लिपिंग. ठीक है. सो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली 3 मिल रहा है, यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है, ठीक है ना? सो एग्जैक्टली हाफ होंगे, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, n इक्वल्स टू 4 d4 में. सो 4 by 2, सो 2 जो है अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सिमेट्री मिलेगी, और 2 अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली सिमेट्री मिलेगी. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं अभी तक? नो सर. चलते हैं हम आगे. अब आप बताइए मुझे कि ये जो एलिमेंट्स थे इसके D1, D2, D3 के एक बार हम लिख लेते हैं पहले. D1 में कौन कौन से एलिमेंट थे बताओ बेटा, एक एक करके सब लोग, सबको चांस मिलेगा. बताइए एलिमेंट्स बताएंगे आप लोग D1 के, D2 के, D3 एंड D4. स्टार्ट, बोलिए. सर आइसोसेलेस ट्रायंगल था D1. एक रोटेशन, R0 और फ्लिपिंग. एक फ्लिपिंग. यस सर. वेरी गुड. देन D2 रेक्टेंगल, R0, R0, R180 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. वेरी गुड. D3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, R0, R120, R240, F1 flip to F2, R240, and then 3 flippings, F1, F2 and F3. And then D4 R0, R90, 90, R180, 180, 270, horizontal, vertical, diagonal, DD. fine. So all we know the elements, ठीक है ना? हमें सब एलिमेंट्स पता हो गए हैं, D1, D2, D3, D4 को. और अगर अभी तक किसी को डाउट हो इसमें तो प्लीज बताइए, क्योंकि ये जो डाइहेड्रल ग्रुप है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स में.
काउंट एग्जाम्पल सपोर्ट में भी आते हैं, काउंटर एग्जाम्पल्स भी आते हैं यहाँ से। चलिए, तो इन ईच केस वी हैव सीन कि यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ रोटेशंस होते हैं और हाफ नंबर ऑफ फ्लिपिंग होती है। आप किसी में भी देख लीजिए इसमें, ठीक है ना, फाइन। और एक चीज और देख रहे हैं हम कि जैसे अगर हम यहाँ पे हम बात करें, ये दोनों तो अलग ही केस होते हैं, ठीक है ना। d ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 के लिए हम n गॉन की बात करते हैं, यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि ये जो आप कह रहे थे आप आइसोसेल्स ट्रायंगल्स से आता है, तो इसमें 3 साइड्स होती है, लेकिन यहाँ पे सफिक्स में 1 है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल रहता है लेकिन सफिक्स में 2 है, तो इनको सेपरेट ही रखा जाता है, ये दोनों अलग ही रखे जाते हैं, इनकी कहानी अलग है। हाँ, लेकिन ये है कि नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ फ्लिपिंग जो होती है वो हाफ होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखते हैं अगर D3 D4 हम पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, सॉरी D1 में पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, आइसोसेलेस एंड पैरेललोग्राम। हाँ, दैट यू कैन ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स। ऐसा नहीं है कि केवल जैसे हम लोगों ने केवल एक ट्रायंगल डिस्कस किया तो उसी से आएगा। आप कोई भी शेप उठाइए ना, उससे आप कोई ना कोई ग्रुप सिमेट्री फाइंड करके जनरेट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। कोई भी शेप उठाएंगे, कोई फ्लावर लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो वहां से आप सिमेट्री फाइंड, जस्ट फाइंड द सिमेट्रीज, फ्लिपिंग एंड रोटेशंस, एंड देन यू कैन जनरेट द ग्रुप्स, फाइन। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखिए D3 D4 में अगर हम फाइंड कर रहे हैं, D3 यहाँ पे है टू R0 R120 R240 तक ये आपका है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे R अगर 90 डिग्री से रोटेशन है, ठीक है ना, R कुछ और नहीं है बल्कि R 90 डिग्री से रोटेशन है, अगर हम मान लें, ठीक है ना। इस केस में मानते हैं कितने से, R 90 डिग्री से, इन जनरल हम लिख रहे हैं, है ना। सपोज हम डिनोट करते हैं R को, R 90 डिग्री से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। सो R 90 हो गया है, R 90 हो गया। R2 का मतलब हम ये कर दें कि R 90 और R 90, ठीक है, R 90 और R 90 मतलब क्या हो गया, R 180 हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हो आप, एंगल ऐड हो रहा है। R3 का मतलब ये हो गया कि R जो है 270 हो गया, ठीक है ना, और R4 का मतलब हो गया R 360 हो गया, ये कुछ और नहीं है बल्कि R0 है, ठीक है, फाइन, या R है जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी हो गया हमारा, ठीक। सो हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक एलिमेंट्स हम इस तरीके से लिख सकते, हम ग्रुप DN बनाने जा रहे हैं इसी की हेल्प से, ठीक। हम DN बनाएंगे इसी की हेल्प से, कैसे बनाएंगे देखिए, हम लिखते हैं F जो है वो फ्लिपिंग बता रहा है, इसकी पावर I कर देते हैं, ठीक है ना, और R टू द पावर J कर देते हैं, R अंडरस्टूड फॉर रोटेशन, ठीक, सच दैट I, अब देखिए I की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, n-1, 0 to n-1। नो, I की वैल्यू फ्लिपिंग हाफ होगा सर, फ्लिपिंग 0 and 2। अब अभी देखते हैं किस तरीके से आप लिखेंगे, कैसे हम इसको जस्टिफाई करते हैं, फ्लिपिंग 1 और 2। अब एक्चुअल में क्या है, किसी एक F जो है ना, ये हमारा मान लीजिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एक F जो हमने कंसीडर किया, सपोज हमने उसको कंसीडर कर लिया कि वो इसके रेस्पेक्ट में है, मतलब टॉप वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक ना। तो एक बार फ्लिप किया आपने तो ये BC जो था ये CB बन गया, अगेन फ्लिप किया तो क्या बनेगा, फिर BC सेम वही आ जाएगा, ऐसे इसी को करेंगे तो भी वही बनेगा, ठीक है ना। आप यही नहीं, आप रेक्टेंगल उठा के देखिए, अगर इसके अबाउट कर रहे हैं आप तो ये दोनों चेंज होने जा रहे हैं, एक बार फिर कर दो, फिर से सेम पोजीशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक फ्लिपिंग के पास दो चॉइसेस हैं, एक फ्लिप के पास, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक फ्लिप के पास दो चॉइसेस हैं कि जैसे या तो चेंज करेगा या तो फिर एग्जैक्टली अपने आप ही जो हो जाएगा वही रहेगा, ठीक है ना, और कोई मतलब चेंज नहीं होने वाला है। अभी देखिए इसके एलिमेंट्स कैसे जनरेट करेंगे, ये सारे एलिमेंट, लेट अस सी। और जे जो होंगे 0 1 2 जो रोटेशन इसमें आ रहे हैं n-1, इसको हम मतलब ब्रीफ में लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी F² क्या होगा, आइडेंटिटी पक्का,
यस सर, R0 r टू द पावर n, अगर n गॉन की केस में है तो फिर आइडेंटिटी होगा, ठीक। और अगर हमने कल एग्जांपल हम लोग D4 का देख रहे थे, तो एक बार हम लोगों ने किया था ना कुछ FR समथिंग ऐसे किया था, और F1 F2 किया था शायद, ऐसे कुछ किया था हम लोगों ने ना, F1 F2 समथिंग लाइक दिस। सो किसी ने कहा था सर F1 F2 फिर F2 F1 कैसे नहीं हुआ है ना, इस चीजें देखा था, है ना, आपको ध्यान होगा। आई डोंट नो, somebody asked something question like this। तो मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि अबेलियन नहीं है, ठीक है ना। सो अब चाहे पहले रोटेट कीजिए, उसके ऊपर फ्लिपिंग ऑपरेट कीजिए, पहले रोटेट कीजिए फिर फ्लिपिंग ऑपरेट कीजिए, ये सेम एज होगा कि पहले आप जो फ्लिप कर दीजिए उसके बाद रोटेशन का इनवर्स ले लीजिए, यानी उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर दीजिए, समझ रहे हो आप, है ना। कल हम लोगों ने देखा था ना कि R अगर 180 है, अगर R 180 है, जैसे R 180 हो गया और H हो गया, ठीक है ना, R 180 हो गया और H हो गया, तो इसका इनवर्स क्या होगा, R 90 हो जाएगा, नहीं कितना होगा, R 180 होगा, इसको ऐसा करते हैं, हाँ R 180 होने वाला है, ठीक है ना, R 180 हो जाए, तो चाहे इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए। अब मान लीजिए R 90 कर देते हैं, R 90 कर देते हैं, तो काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो कुछ और होगा, ठीक है ना। और अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो फिर इसका कंप्लीमेंट हम देख लेंगे, हम 270 डिग्री से हमें रोटेट करना पड़ेगा, यही तो होता है, ठीक है ना, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। एनीवे, सो दीज आर द एलिमेंट्स। अब इसमें देखें आप, I की वैल्यू आप 0 रखेंगे, I की वैल्यू 0, तो F0 यहाँ पे हो गया। F0 का मतलब ये हुआ कि कोई फ्लिपिंग नहीं करनी है, ठीक है, कोई फ्लिपिंग नहीं करनी है, पक्का। और ये हो गया RJ, तो ये कितने की, जब कोई फ्लिपिंग नहीं कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा RJ हो गया, ये क्या हो गया, ऑल रोटेशंस हो गए, फाइन, हेलो, यस सर, ये ऑल रोटेशंस हो गए। अब देखिए F के पास और एक यहाँ पे पावर हो गई और R ये J हो गया, ठीक ना, F और RJ, और इसके अकॉर्डिंग F1 है ये, ठीक ना, F1 और 1 को आप F भी लिख सकते हैं, ये F RJ हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका, F RJ लिखा हुआ है, ठीक ना, तो RJ इसका इनवर्स हो गया और F हो गया। हेलो, यस। सो यहाँ से जो मिलेगा हमें, ये सारी चीजें हमें फ्लिपिंग ही मिलने वाली है, ठीक है ना, ये हमें फ्लिप मिलेगा, आप रोटेट करके फ्लिप कीजिए या फ्लिप करके रोटेट कीजिए। और ये चीज हम लोगों ने देखा होगा कि जब आप टेबल बना रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे टेबल, ठीक है, ध्यान है आपको, जब कंस्ट्रक्ट किया था टेबल कल, सो even you can see the table shared in the group, जो आज कुछ बच्चों ने शेयर किया था, टेबल बना के D4 की, ठीक है ना। तो आप जहां जहां भी देखेंगे R और H ऑपरेट हो रहे होंगे, यानी फ्लिपिंग ऑपरेट हो रही होगी, तो वहां पे फ्लिपिंग ही आ रही होगी, H D V D डैश, ये सारी यही आ रही होगी, ठीक है ना। सो ये यहाँ से हमें सारे की सारी फ्लिपिंग मिलेगी, ऑल फ्लिपिंग्स, ठीक है, सारे फ्लिपिंग से मिल जाएगी, और यहाँ से सारे हमें रोटेशन मिल जाएंगे। अब ये फ्लिपिंग प्योर फ्लिपिंग भी हो सकती है, प्योर फ्लिपिंग जैसे हम कर रहे थे ना, F1 F2 F3 F4, और इनके कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं कुछ रोटेशन और उसके, ठीक है ना, लेकिन ये सारे के सारी यहाँ से मिल जाएंगी। सो जो हमारा DN ग्रुप होगा वो इस तरीके से होगा। समटाइम्स जो है इसी DN को XY के टर्म्स में भी लिखते हैं कुछ ऑथर्स, जैसे इसको लिख देंगे कि XI हो गया और YJ हो गया, तो इससे आपको मतलब है भाई, मैंने R और F लिखा ताकि हम लोग रिलेट कर पाए इसको, ठीक है ना। देन J 0 1 2 अप टू n-1 हो गया, और x स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू y टू द पावर n, y रोटेशन है, और ये हो गया हमारा x y इक्वल्स टू y इनवर्स x, ठीक है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर है, हम चलते हैं आगे।
ठीक है। यूजुअली आपको D4 तक ही मिलेगा, और इसके आगे अगर मिलता है तो इसी में हम ऑब्जर्व करेंगे कि नंबर ऑफ कोर्स नंबर ऑफ रोटेशंस जो होंगे, मान लीजिए हम n की वैल्यू 6 कर लेते हैं, तो इसमें कुल मिलाकर के 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो 6 जो है रोटेशंस होंगे और 6 फ्लिपिंग होंगी इसमें, ठीक है। So let us move further. So this is another picture. If you see, so how many, which gone is there? This one. कितने sides हैं? 6. Hexagon. Hexagon. 6 है ना? 6 है तो D6 यहाँ से बनेगा, ठीक है। D6 बनेगा और इसमें आपके 2 times 6 दैट इज 12 एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो 6 रोटेशंस होंगे और 6 फ्लिपिंग होगी, ठीक है। सो 6 इवन है, तो आप इनके पास आइए और ढूंढिए, ये आपको हेल्प करेंगे सिमेट्री फाइंड करने में, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है ना। 6 इवन है, यहाँ पे आ गए हम, तो n/2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी और n/2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री दूसरी तरह से मिलेगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देखेंगे, एक तो ये हो जाएगा कि ये जैसे ये ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग फ्रॉम मिड पॉइंट, मैं इसमें कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी सिमेट्रीज, ठीक है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 3 ऐसी होगी n/2, 6/2 दैट इज 3, है ना। 3 ये हो गया, और फिर अपोजिट वर्टिसेस अगर करेंगे आप, तो एक ये हो गया, एक ये ज्वाइन किया हुआ है और एक ये ज्वाइन किया, 3 ये भी हो जाएंगे, तो टोटल 3 + 3 हो गए, ठीक है ना। अब रोटेशंस में किस एंगल से रोटेट करेंगे, तो आपने इन सब लाइंस को जैसे ज्वाइन किया है, ठीक है ना। सो आप देखेंगे तो इसमें ये कितना एंगल बनेगा, ये 60 का मल्टीपल, तो जैसे 360 है ना, 360 है तो जितने साइड्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, आपके 60 हो जाएगा। जैसे D4 में था तो टोटल एंगल इंटीरियर उसका सम, मतलब इसके राउंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इसके राउंड की बात कर रहे हैं, तो इसके राउंड उसमें भी किसी पॉइंट के राउंड सारे, मतलब एंगल जो होगा वो आपका 360 होगा, तो 360/4, तो वहाँ पे 90 आ रहा है, ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस में भी हमने देखा, तो वहाँ पे जो बन के आ रहा था वो 120 बन के आ रहा था, 360/n, वहाँ पे 3 था, तो 120 डिग्री से रोटेशन हो रहा था, ठीक है। सो ये चीजें केवल D3 D4 यानी n = 3 और ग्रेटर देन 3 के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। सो इसकी सिमेट्री करके आप इसको भी, इसका ग्रुप बना सकते हैं ना, और कंपोजिशन टेबल भी बना सकते हैं, आप कर लेंगे। थोड़ा लंबा होगा इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, बट आई गेस आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बस कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अगर थियरी समझ में आ गई तो फिर कर लेंगे, फिर कोई भी फिगर दे दे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। चले आगे, चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, और वो एग्जांपल्स एक तो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन है, और उसके बाद देखते हैं केलिन्स 4 ग्रुप के नाम से भी एक ग्रुप है, तो ये कर लेते हैं, और फिर इसी के साथ मतलब ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन, the group of quaternions. This is denoted by Q8, and the elements in this group are ±1, ±I, ±j, ±k. So there are 8 elements in this group, and with the property that I square equals to j square equals to k square equals to -1, and then we have I times j equals to minus j times I equals to k, and then j times k equals to minus k times j equals to I, j, k, and I, and then we have
another k I equals to negative times of I k equals to j. So this what's going on there? Let us construct a circle kind of thing. So we have I here, we have j here. You can write anti-clockwise or clockwise direction, but you can follow only same direction anyway. So I, j and j then k. So I times j is giving k. Fine. यहाँ से आप चल रहे हैं I और J को कंबाइन कर रहे हैं तो K मिल रहा है. So here we are seeing, ठीक ना, I J क्या दे रहा है, K दे रहा है. And then if you are going another way means J और I को कंपोज कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिल रहा है, K मिल रहा है, because we are in another direction, so we are writing here negative times of I J I. Fine. तो ऐसे ही ये भी है. साइक्लिक एक हम लोगों ने ये सर्कल बना लिया और फिर इससे इम्प्रूव कर सकते हैं. So they are I, J, K are nothing but they are complex numbers as we see from their properties. Iota आप जानते हैं ना, iota this is square negative 1. Similarly J and K. So this is the group with 8 number of elements. ठीक है. So of course we can make a table for this also. टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक ना. से 1 -1 and then I, then minus I, then J, then minus J, K and then minus K. Fine. Hello. Yes, sir. So the compositions are defined here. Fine. So आप 1 देखेंगे तो 1 यूजुअल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन भी आप जानते हैं. 1 से अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा. तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट 1 इज गोइंग टू बी आइडेंटिटी. So -1 I minus I and then J minus J then K minus K. Fine. And then minus I minus I J and then minus J then K and then minus K. Similarly we can fill everything. कर लेंगे fill इसको, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है हमारा 1 ये सेल्फ इनवर्स हो रहा है, ठीक है ना, और ये आइडेंटिटी भी है इस ग्रुप का, ठीक है. सो इफ यू टेक अनदर -1 और -1 फिर 1 हो जाएगा तो -1 भी सेल्फ इनवर्स हो रहा है, ये भी आप देख रहे हो है ना, ठीक है. फाइन. और -1 and then minus I, then it will give us I and then J, this is minus J and then minus plus then J and then we have minus K and then K, ठीक है ना. तो ऐसे आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फिर I से मल्टीप्लाई करेंगे तो minus I हो गया and then I times I that is -1 something you forgot or what, यहाँ पे नहीं लिखा कुछ, minus I आएगा ना, minus I रह गया, ठीक है. एंड देन I और minus I और I, ठीक है ना. देन minus I times I कितना हो गया बेटा, -1 into -1 है ना, 1 हो जाएगा, ठीक है. सो अगेन वी सी दैट देन I का इनवर्स जो होगा क्या होगा, नेगेटिव I होगा, ठीक है. ओके. एंड देन वी हैव IJ इज K एंड देन IJ माइनस यहाँ पे है, माइनस है ना, I इंटू माइनस J है, ठीक है. सो कुछ और नहीं है बल्कि I और J है माइनस टाइम्स IJ K होता है तो माइनस K हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना. एंड देन I K की बात करेंगे तो I के बाद K इधर आ रहा है, ठीक है ना, तो माइनस J हो जाएगा, माइनस J हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी सर्टेनली J. तो इसको आप फिल कर सकते हैं ऐसे, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियन. In fact, okay, let us see. So there is one term in your syllabus. It is written that कि आप matrix representation quaternion group का कैसे होगा. तो we can actually in group theory we are looking for the property of element. We are not interested how they looks like, ठीक है ना.
हम सिमेट्री देखेंगे तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, डाइहेड्रल ग्रुप बना देंगे, देन वी कैन फाइंड अनदर ग्रुप which element of which group having the similar properties, ठीक है ना। तो ऐसे हम करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, 1 इसकी तरह बिहेव करेगा, I इसकी तरह, J इसकी तरह, K इसकी तरह, चारों मिल गए हमें, ठीक है ना। तो जैसे ही 1 मिला -1 हम मिल जाएगा, ठीक है ना, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, सारे उसमें I तो यहाँ पे -I से मल्टीप्लाई कर देंगे, J मिल गया, K मिल गया, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ Q8। आर यू गेटिंग? यस सर। और आप इसमें प्रॉपर्टी देखेंगे ना, तो 1 स्क्वायर कितना था, 1 था। आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना सेल्फ से, तो आइडेंटिटी ही मिलेगा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आई स्क्वायर जो है, आप आई स्क्वायर करोगे ना, आई स्क्वायर कितना, -1 होना चाहिए। तो आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो, आई 0 0 एंड -i, इसको आई 0 0 एंड -i मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो। So what we are getting, 0 0 I माइनस minus हो गया and then 0 हो गया यहाँ पे, ठीक ना, I -1 and then 0 plus 0 हो गया, ठीक ना। R C करते हैं ना हम, R into C, so R into C ऐसे कीजिए, ये हो गया, फिर 0 into 0 यहाँ पे हो गया, and then what is there, 0 और इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -i करेंगे तो ये -i टाइम्स -i कितना होगा बेटा, -1। पक्का? यस सर। चलो बहुत बढ़िया है, -1 हो जाएगा ना, क्योंकि -1 से प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर बचेगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 हो गया, -1 कॉमन, माइनस कॉमन ले लो, तो 1 0 0 1 हो गया। ये कुछ और नहीं है, ये जो आई था ना इसी, ठीक है ना, इसी का हो रहा है। तो माइनस टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी आ रहा है ना, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी था ना, ये माइनस टाइम्स ऑफ 1 आइडेंटिटी, फाइन। ये उसी की तरह बिहेव करा, ऐसे ये भी है और ये भी, आप उस मल्टीप्लाई करके यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मैट्रिक्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाटर्नियर ग्रुप, सो यू कैन रिमेंबर दिस वन। और आल्सो जैसे हम लोगों ने डाइहेड्रल ग्रुप के लिए लिखा, वैसे यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक ना। सो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 ऑर्डर के या 4 ऑर्डर के, है ना, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इसमें, इस ग्रुप में देखें, ठीक है ना, तो 1 जो है उसका ऑर्डर का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, ऑर्डर का मतलब अभी आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो जब जान जाएंगे तो ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी रहेंगी। थिंग इज दैट कि कोई एलिमेंट जी ग्रुप का है, ठीक है ना, सो कोई नेचुरल नंबर n, कोई नेचुरल नंबर n a का ऑर्डर कहलाएगा अगर a टू द पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाए, और n जो है ऐसा स्मॉलेस्ट इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे i टू द पावर 4 कितना हो गया, 1 हुआ, ठीक है ना। तो क्या 4 से छोटा कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पे करें i टू द पावर x किया 1, और x अगर लेस 4 से छोटा है, तो क्या ये कभी होल्ड होगा? नो सर, नहीं होगा। और ये x जो है इंटीजर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं आप कह दो सर -4 रख लो, 4 से छोटा तो है ही, है ना। तो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। अच्छा, तो वो सबसे छोटा होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर 8 भी रखोगे ना तो भी 1 होगा, लेकिन 8 इसका ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट सच नेचुरल नंबर सच दैट a टू द पावर n इक्वल्स टू e। ये तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में हुआ। एडिटिव ग्रुप में हम क्या कहेंगे, n टाइम्स a इक्वल्स टू e, ठीक है ना, समझ रहे हो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसी को ट्रांसलेट करेंगे जब एडिटिव ग्रुप के लिए तो ऐसे होगा, है कि नहीं, a प्लस a, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, एडिशन होगा, ठीक है। चलिए, सो इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर -1 कम्यूट करता है सारे एलिमेंट्स एंड ऑल, ये कह रहे हैं कि Q8 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 तरीके के एलिमेंट मिलेंगे इसमें, एक एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी पावर 4 करने पे 1 आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे यही समझिए, ऑर्डर का बात अब नहीं कर रहे हैं हम,
हम कह रहे हैं जिनकी पावर 4 करने पे यानी 4 बार मल्टीप्लाई कर दो उसको तो बना रहा है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? 1 है, 1i 1 भी आएगा, 1 भी की पावर 4 करो तो आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा। अभी हम ऑर्डर के तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 स्क्वायर भी तो 1 होगा, हम ऑर्डर नहीं कर रहे, हम पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट है? i है ना, j है और k है और 1 भी है। तो ऐसे ये सारे एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स है, ऐसे एलिमेंट मतलब दो तरीके के एलिमेंट समझ में आ रहे हैं ना यहाँ पे आपको? दो तरीके के एलिमेंट, एक ऐसे होंगे जिनकी पावर 4 करने पे 1 आ रहा होगा, फिर ये जो दोनों तरीके के एलिमेंट है ना दोनों सेम हो जा रहे हैं अगर स्क्वायर किया जा रहा होगा। तो अगर स्क्वायर तो कैसे था, i स्क्वायर किया -1 आया और ये j स्क्वायर किया, यही होगा ना, ठीक है, पक्का? यस और ये की प्रॉपर्टी होगी, इसको भी आप कर सकते हैं ऑब्जर्व, या आप इसको ऐसे कर दीजिए कि थोड़ा सा और आसान भाषा में b इनवर्स ab इक्वल्स टू a इनवर्स है, थोड़ा सा आसान करते हैं, इफ एंड ओनली b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, है ना, तो b इनवर्स b से मल्टीप्लाई करो, b इनवर्स हो गया, ये ab हो गया इक्वल्स टू b हो गया और ये हो गया a इनवर्स हो गया, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ ये आइडेंटिटी हो गया हमारा ab इक्वल्स टू b टाइम्स a इनवर्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, नो सर क्लियर। अब इसमें आप प्लेस चेंज कर देंगे और जो पहले वाला है उसको जिससे प्री मल्टीप्लाई किया तो पोस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके इनवर्स से, ठीक है। तो इसको हम इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी ग्रुप आप बना सकते वेट में कोई, अब ऐसे जो एलिमेंट ए बी आप रख लो जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्यू वेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे बी इनवर्स होगा, तो कहाँ पे बेटा? ए इनवर्स के बगल में, यहाँ नहीं सही है सर, बी वाली प्रॉपर्टी, यहाँ वाली B से प्रॉपर्टी का multiply कुछ किया। समझा दीजिए। इसमें एक्चुअली प्री मल्टीप्लिकेशन हमने किया था ना, बी से प्री मल्टीप्लाई किया मतलब पहले, तो यहाँ पे बी आ गया, बी इनवर्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ए भी बचा। यहाँ पे राइट साइड में भी पहले मल्टीप्लाई कर दो बी से तो बी ए इनवर्स हो जाएगा। ये कहाँ पे दिक्कत है? हाँ सर इस प्रॉपर्टी को समझ में नहीं आई, ये वाली जो तीसरी वाली है, ये वाली ये Yes, कह sir. रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट कंपोज करते हो ना, अब दो एलिमेंट कंपोज करते हो आप, यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट जैसे आई जे कंपोज करते हो, आई जे इसी को तो लिखा है उन्होंने, आई जे को कंपोज करते हो कितना आ रहा है, के आ रहा है, ठीक है ना। सो अब उसी को मैंने दूसरी भाषा में लिखा है यहाँ पे कि ये उसी के इक्वल होगा, बी और जे इनवर्स के इक्वल होगा। आई जे लिखा था तो यहाँ पे जे आई इनवर्स करो, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा जे आई इनवर्स, ऐसे करो, ठीक है ना। तो आई इनवर्स, आई का इनवर्स क्या होगा बताओ, आई इनवर्स दो माइनस आई, माइनस आई तो जे और माइनस आई हो गया, तो ये कितने के इक्वल हो गया, ये माइनस जे आई। अब समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, यही तो लिखा था, ठीक है ना, इसी को लिखा हुआ। तो इसलिए मैंने इसको ये ए इनवर्स यहाँ पे नहीं रिलेट कर पाते लेकिन वहां से रिलेट कर सकते थे हम। या फिर इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रिस एलिमेंट बन रहा है इसमें ए, ठीक है ना, इसमें प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे किसी एलिमेंट से तो उसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अब एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग और है कि ये जो लिख रहे हैं ना बी इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए इनवर्स लिख रहे हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी अगर करोगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, ऐसे भी करोगे तो कोई हर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बी इनवर्स किसी ग्रुप का एलिमेंट, ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई भी ना, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ग्रुप का, तो अगर बी इनवर्स एलिमेंट है इसका तो बी भी एलिमेंट होगा उस ग्रुप का क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना। और अगर बी है तो ये उसका इनवर्स होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप चाहे तो यहाँ से यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं, देखिए कर पाओगे आप, ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात? यस सर। यस सर। अब जैसे मैं कहूँ बी इनवर्स को कोई एक एलिमेंट और दे देता हूँ, मैं कह देता हूँ बी इनवर्स जो है ना वो मेरा सी हो गया, ठीक है ना, बी इनवर्स क्या हो गया, सी हो गया।
तो ये क्या लिखेंगे, मैं सी लिख दूंगा, ठीक है ना, ये ए लिख दूंगा, और बी फिर क्या होगा, बी जो हो जाएगा मेरा, बी इनवर्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, तो सी इनवर्स हो गया, और इक्वल्स टू क्या हो गया, इनवर्स। आर यू गेटिंग? हेलो, यस सर। ठीक है, चलिए। सो आई गेस कि आप लोगों को ग्रुप क्वार्टरनीन भी आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं एंड देन लेट अस फिनिश टुडेज डिस्कशन। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज Killian's 4 ग्रुप। इसको समटाइम्स K4 से भी डिनोट करते हैं या फिर V4 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, दोनों नोटेशन है इसके लिए। सो Killian's 4 ग्रुप में एलिमेंट्स रखे जाते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, E, A, B और AB, ठीक है ना, और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है, A² B² इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और हेलो सर आपकी वॉइस नहीं थी, अभी आ रही है। बीच में कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। सो AB इक्वल्स टू, आप इसमें दोनों साइड में हम ना, इधर में हम BA इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, BA इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, BA हो गया और BA इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये राइट साइड में BA और ये हो जाएगा A इनवर्स, B इनवर्स होगा, रिवर्सल लॉ या फिर सौ सूक्ष्म वाला जो लॉ हम लोग ने पढ़ा था ना, सो B इनवर्स हो गया, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना, ओके। हेलो, यस सर। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये AB हो गया और ये बन जाएगा हमारा AB, इसका इनवर्स करेगा A इनवर्स और A इनवर्स B इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये A इनवर्स B इनवर्स हो जाएगा, B इनवर्स A इनवर्स क्या, नहीं रिवर्सल लॉ से तो ऐसे ही होगा ना, तो ये भी प्रॉपर्टी, और इसकी हेल्प से हम ये भी वो कर सकते हैं कि आपका AB का स्क्वायर जो होगा ना, ये भी आइडेंटिटी होगा, मतलब तीनों के तीनों होंगे। अब इसको आगे मैं थोड़ा सा वो करूँ क्योंकि अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन मैंने अभी बताया नहीं पूरी तरीके से, ठीक है ना, सो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अबेलियन हो जाएगा, तो अबेलियन में आगे हम देखेंगे कि क्या, ठीक है ना, चलिए, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू E के, तो ये इसको Killian's 4 ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, E जो होता है, ये भी, ये सारे के सारे इन सबके ऑर्डर जो होते हैं, A का ऑर्डर, ये ऑर्डर कह रहा हूँ, मतलब A² भी आइडेंटिटी, B² भी आइडेंटिटी और AB² भी आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है ना। सो लेट अस end the discussion for the day.